بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کی فضائی میزبان کی ٹورنٹو سے حراست میں لیے جانے کا معاملہ۔ فضائی میزبان خاتون سے متعلق ایف آئی اے نے قومی ایئر لائن سے تفصیلات طلب کی ہیں۔ کراچی ایسٹر تعطیلات کے باعث خاتون میزبان کو بدھ کے روز مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خاتون ایئر ہوسٹس ہیں جو سلپ ہو گئی تھی، اب ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ نوٹ چھوڑ دیا تھا انہوں نے تھینک یو پی آئی اے کا، لیکن پی آئی اے کی جانب سے جو ہے وہ حرکت کی گئی، ایف آئی اے بھی انوالو ہوا، خاتون کو حراست میں لیا گیا۔ فضائی میزبان کی ٹورنٹو سے حراست میں لے جانے کا معاملہ۔ فضائی میزبان خاتون سے متعلق ایف آئی اے نے قومی ایئر لائن سے تفصیلات طلب کرنی ہے۔ ایسٹر تعطیلات چل رہی ہیں جس کے باعث خاتون میزبان کو بدھ کے روز مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ خاتون ایئر ہوسٹس وہاں پر ایک نوٹ چھوڑ گئی تھی جس میں انہوں نے تھینک یو پی آئی اے کہا تھا اور سلپ ہو گئی تھی وہاں پر۔ اس سے پہلے بھی کافی ایئر ہوسٹس سلپ ہوئی ہیں لیکن ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ بات کر لیتے ہیں خورشید رحمانی سے۔ خورشید بتائیے گا۔ جی، ایف آئی اے حکام نے قومی ایئر لائن سے رابطہ کیا ہے۔ اس والے رابطے کرنے کا مقصد جو ہے گزشتہ چند روز قبل ٹورنٹو میں پاکستانی فضائی میزبان کے کی ہراسانی کے متعلق جو ہے وہ مزید تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا ہے۔ اس وجہ سے ایف آئی اے حکام نے اس کے متعلق جو ہے وہ تفصیلات طلب کی ہیں۔ رائے کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ چند روز قبل جو پی آئی اے کی فضائی میزبان تھی اس کو غیر ممنوع اشیاء لے جانے پر جو ہے وہ وہاں پر حراست لیا گیا تھا اور پاکستانی فضائی میزبان کو جو ہے وہ پی آئی اے نے اس ملازمت سے معطل کر دیا تھا۔ پی آئی اے کے رسول حنا ثانی کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ فضائی میزبان خاتون کو ٹورنٹو ایئرپورٹ پر حراست میں لیا گیا تھا۔ خاتون فضائی میزبان حنا ثانی کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ حنا ثانی کو ایسٹر کی تعطیلات کے بعد بدھ کے روز مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ خاتون میزبان کو غیر ممنوع اشیاء لے کر جانے پر ٹورنٹو ایئرپورٹ پر حراست میں لیا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے خورشید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سینٹ الیکشن کے لیے میدان آج سجے گا۔ سندھ سے 12 نشستوں پر تمام امیدواروں کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کے 10، ایم کیو ایم کا 1 اور آزاد امیدوار فیصل واؤڈا کی کامیابی یقینی۔ سندھ اسمبلی کے ایوان کو الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی بیک آؤٹ کا اعلان تو کر چکی ہے۔ سینٹ انتخابی دنگل، سندھ سے جیالے امیدواروں کی کامیابی یقینی۔ سینٹ الیکشن کے لیے میدان آج سج رہا ہے۔ صوبے سے 12 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے 10، ایم کیو ایم کا 1 اور آزاد امیدوار فیصل واڈا کی کامیابی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے 6 امیدوار بھی ریٹائر ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے سرفراز راجڑ سینٹ انتخابات سے ریٹائر ہو گئے۔ جنرل کی 7 میں سے 5 پر پی پی کی کامیابی کا امکان ہے جس میں اشرف جتوئی، مسرور احسن، دوست علی جیسر، کاظم شاہ، ندیم بھٹو شامل ہیں، جبکہ 1 پر ایم کیو ایم پاکستان کے عامر چشتی اور آزاد امیدوار فیصل واڈا کی جیت بھی یقینی ہے۔ فیصل واڈا کو پیپلز پارٹی اور متحدہ پاکستان کی مشترکہ حمایت حاصل ہے۔ ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستوں پر پی پی کے بیرسٹر ضمیر سرمد علی کی کامیابی یقینی۔ خواتین پر قرۃ العین مری اور روبینہ قائم کانی کی کامیابی کا بھی امکان ہے۔ اقلیتی نشست پر بھی جیالے پوجومل بھیل کی جیت یقینی ہے۔ سندھ اسمبلی کے ایوان کو الیکشن کمیشن کے سپرد کیا گیا ہے جہاں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ارکان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ سینٹ الیکشن کی جانب سے خواتین، جنرل اور ٹیکنوکریٹس کے لیے الگ الگ بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی سندھ پہلے ہی سینٹ الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر چکی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ صوبے کو مکمل طور پر ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے عید کے بعد مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ جماعت اسلامی کی ایک بار پھر نئی تحریک، عید کے بعد جعلی مینڈیٹ لینے والوں کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا اب تو ڈاکوؤں کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے۔ شہر میں 4,500 ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں مگر پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ شہر کراچی جو پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، 3.5 کروڑ انسانوں کا یہ شہر ہے، یہ صوبہ سندھ جو اپنی اہمیت رکھتا ہے اس کو تو عملاً ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس وقت کراچی میں صرف رمضان المبارک میں 9 خاندان اجڑ گئے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں ڈکیت۔ اگر کوئی پکڑا جائے تو پروسیکیوشن نہیں ہوتی۔ 4,500 ڈکیتیوں کے وارداتیں ہو چکی ہیں سنیچنگ کی۔
अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि दुनिया भर में रमज़ान में सहूलियात दी जाती हैं, यहाँ महंगाई बढ़ जाती है, गैस की नरखों में इजाफा अवाम पर इजाफी बोझ है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सिराजुल हक की सरबराही में यौमुल कुद्स मनाया जाएगा। इसराइल की हिमायत करने वाला उम्मत मुस्लिमा का गद्दार होगा। अभी आइंदा जुमे को यौमुल कुद्स है और पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह मनाया जाएगा और पूरे पाकिस्तान में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब की अपील पर यौमुल कुद्स जो है वो पूरी जो है वो ताकत के साथ मनाया जाएगा। जो भी इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा या उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पींगे बढ़ाने की बात करेगा, वो उम्मत का तर्जुमान क्या उम्मत का गद्दार ही होगा। हाफिज नईम रहमान ने मेयर कराची मुर्जा वहाब को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि मुर्जा वहाब को जवाब देना होगा कि उनकी कारकर्दगी क्या है। कैमरामैन काशिफ के साथ मीर कीरियो, कराची। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सिंध असम्बली के इजलास में 3 नौमंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया, जबकि मंगल के रोज़ होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए सिंध असम्बली का ऐवान इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द किया गया। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास 1.5 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ और MQM से वाबस्ता सिर्फ 2 ख़वातीन अरकान की हल्फ बरादरी के बाद इजलास 4 बजे तक मुलतवी हो गया। दूसरे सेशन में पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब रुकन जुबैर जुनेजो ने हल्फ उठाया। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कल सेनेट इलेक्शन के लिए PTI ने 10 बरादरी का ऐलान किया था, लेकिन कोई भी इलेक्शन कमीशन नहीं गया। PTI झूठ का सहारा लेती रही है, आवाम को गुमराह करती रही है, तो उन्होंने बायकॉट तो इसलिए किया कि उनके 9 मेंबर हैं, 9 मेंबरों से कि एक सीट भी नहीं निकलती, लेकिन उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, तो इट मीन्स कि वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा भी ले रहे हैं। यू टर्न जो हैं वो शुरू से ही बानी PTI भी लेते थे और ये हमारे दोस्त भी, इन्होंने अभी तो ऐलान किया था, लेकिन उसके बावजूद 12 बजे का टाइम था और किसी ने भी वहाँ से अपने जो पेपर्स हैं नॉमिनेशन के वो वापस नहीं लिए। तो आप वाली बात कि वो सिर्फ बात कर देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। सिंध असम्बली MQM की जानिब से अमन अमान की सूरत-ए-हाल पर तहरीक अल्तवा जमा करवाई है, जबकि अपोजिशन लीडर के लिए अली खुर्शीदी के लिए स्पीकर को दरख्वास्त जमा करवाई गई। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस शहर के रहने वालों को की हिफाजत की जाए, इस शहर की इमलाक की हिफाजत की जाए। यहाँ लोगों के बाल जान सबसे हाथ धो बैठे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे हम तहरीक इल्तवा पेश करेंगे और MQM भरपूर अंदाज से शहरी सिंध का मुकदमा लड़ेगी इस तहरीक इल्तवा को लेकर। सिंध असम्बली के ऐवान को इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द किया गया है, जहां मंगल की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए इंतखाब होगा। कैमरामैन वाहिद खान और उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मरकज़ी मातमी जुलूस खारदर हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए थे। मज़ीद इस रिपोर्ट में। शेर खुदा, दामादे रसूल खुदा और फातेह खैबर हजरत हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम का यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। यौम हजरत अली करमुल्लाह वजहो का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। उलमाए इकराम और जाकिरीन ने फलसफा शहादत और हजरत अली अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार पर रोशनी डाली। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस, रेंजर्स और स्काउट्स के रजाकार तैनात रहे। बुलंद इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए, जबकि MA जिना रोड पर जुलूस के रास्तों को हिफाजती तौर पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह खारादर हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। इससे कबल सूबाई वजीर दाखिला जिया लंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मरकजी जुलूस का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। मुख्तलिफ फलाही तंजीमों और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए थे। कैमरा टीम, साथी रिपोर्टर ताहा मलिक, अक्सा शाहिद, रिजवान अहमद के हमरा, सैयद नुमान गुल, सिटी 21। ईद से कबल पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। मजीद मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट में। गरीब आवाम के लिए ईद पर हुकूमत का एक और तोहफा, पेट्रोल बम गिराने के बाद बिजली के भी झटके दे दिए। मुल्क भर की तरह कराची नेपरा ने फी यूनिट 2 रुपये 75 पैसे बिजली महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली रवा माली साल की दूसरी 6 माही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। बिजली महंगी करने पर शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई के दौर में घर का किराया दें या
बिजली के बिल अदा करें। 30,000 तनख्वाह ड्राइवर लोग हैं और महंगाई इतना किया है जो गुजारा होता नहीं है। बिजली बिल देते हैं तो गंदम वगैरह का, आटे वगैरह का नहीं पूरा होता, घर में पूरा नहीं होता। बिल बिजली का ये तकरीबन 5-6 7 हज़ार देते हैं। गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं, लिहाजा हम गरीबों पे एहसास करो। शहरियों का कहना है हुकूमत ने कल पेट्रोल महंगा किया, आज बिजली महंगी का तोहफा ईद से कबल ही दे दिया। पहले पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए और आज बिजली पे। अब 30,000-35,000 कमाने वाला बंदा क्या करेगा? घर का रेंट देगा 15,000, बिजली के बिल भरेगा, फिर अपना ऑफिस आना जाना पेट्रोल डलवाएगा, क्या करेगा? हुकूमत को चाहिए कि इस पे नोटिस लें और पेट्रोल में और बिजली में ख़ास तौर पे कि कमी करी जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक किया इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। शहरियों ने मुतालिबा किया है हुकूमत इस इकदाम को संजीदगी से ले और बिजली और पेट्रोल दोनों पर पैसे कम करे। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। कराची के सिटी रेलवे कॉलोनी में गैस की आंख मचोली जारी है। इलाका मकीनों ने सहर अफ्तार में ताखीर से गैस की फराहमी और कबल अज वक्त बंदिश का शिकवा किया। मसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। रमजान मुबारक में भी कराची के बासी गैस की लोड शेडिंग से मुतासर सिटी रेलवे कॉलोनी के इलाका मकीनों ने सहर अफ्तार में ताखीर से गैस की फराहमी और कबल अज वक्त बंदिश का शिकवा कर डाला। इलाका मकीन कहते हैं गैस मसाइल से परेशान है, गैस आती नहीं लेकिन लाखों रुपए के बिल आते हैं। दिन का ज्यादातर हिस्सा सुई सटन के दफातर के चक्कर लगाने में गुजर जाता है। बुजुर्ग अफराद को गर्म पानी फराहम करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ ज्यादातर नमाजी परहेजगार जो लोग होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हो गए हैं, वो ठंडे पानी से वजू नहीं कर सकते। अब गैस नहीं तो उनके लिए पानी कहाँ से गर्म करें? अभी मेरे सब्जी वो पड़ा हुआ है, किस वास्ते पड़ा हुआ है? गैस के वास्ते पड़ा हुआ है। गैस नहीं है तो हमारा कुछ है ना दिल नहीं मांगते हम घर जावे हो ये जो है ना पकावे शाम को फिर डिप्टी जाने। इलाका मकीनों का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर उनके मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू। शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग की मुनासबत से अनारकली बाजार में इस वक्त मौजूद है। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी आज बिल्कुल देखें रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो चुका है और आखिरी अशरे में शहरियों की जानिब से जो ईद की तैयारियां हैं तो वो उसकी ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो भी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पम्प के इलाके में और यहाँ पर अनारकली बाज़ार जो कि बच्चों की मार्केट बिलखुसूस यहाँ पर कहलाती है और शहरी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों की ख़रीदारी ईद की तैयारी के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर ख़रीदारी जो है वो भी काफ़ी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। बच्चों के कपड़े यहाँ पर ख़रीदे जा रहे हैं। कुछ ऐसे शहरी भी हैं जो कि मन पसंदीदा जो बच्चों की कॉस्मेटिक्स हैं वो ख़रीद रहे हैं। रात का ये पहर है और रात के पहर जो है यकीनन तरावी के बाद शहरी बहुत बड़ी तादाद में मार्केट्स की जानिब जो है गामज़न रह जाते हैं। ईद में गालिबन बहुत कम दिन रह गए और आखिरी अशरा बिलखुसूस इसी वजह से बड़ा मकबूल इस लिहाज से भी रहता है कि शहरी जो है आखिरी अशरे में मार्केट्स की जानिब जो है गामज़न रहते हैं। एक शहरी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, शहजादा भी इनके हाथ में है और अपने बेटे की ख़रीदारी के हवाले से यकीनन यहाँ पर मौजूद होंगे। मुझे बताइए कुछ पसंद भी आया? वह कुछ पसंद कर रहे हैं। आस्ता आस्ता जिस तरह शॉप खुली है तो हम लोग देख रहे हैं। विंडो शॉपिंग फ़िलहाल चल रही है तो बेसिकली अभी जो है हमने शॉप हमने देखी है, ठीक है, तो रिजनेबल प्राइस है और पिछले साल की तरह इस साल कुछ थोड़े से क्या नाम है प्राइस ज़्यादा है यहाँ के, थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है और यकीनन पेट्रोल की कीमतें भी जो है गुज़िश्ता रोज़ बढ़ी हैं तो हो सकता है इस वजह से भी जो रेट्स हैं उस पर असर पड़ा हो। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है, बिलखुसूस अनारकली बाज़ार जो है बच्चों की वजह से बड़ा मकबूल जो है कहलाता है, तो वैरायटी के हवाले से क्या कहेंगे? वैरायटी जो है इस साल जो वैरायटी है इतनी ख़ास नहीं है। वो पिछले साल जो उससे जो हम लोग देखते हैं वही प्राइसेस वगैरह इसमें आ रही हैं, ठीक है, और तो सेम मतलब क्या नाम है हम लोग जो प्राइस देख रहे हैं ना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है, कॉस्टली है उसमें। यहाँ पर ख़रीदारी का सिलसिला यकीनन इसी तरीके से जारी है और मार्केट में खूब इस वक्त गहमा गहमी भी जो है उरूज पर है। जी फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब का कहना है कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, लेकिन अगर हर शहरी अपने हिस्से का काम मेहनत और ईमानदारी से करे तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम इस चैलेंज से सुरखरू होगी। जावेद इकबाल की रिपोर्ट।
क्लिफ्टन में सेहत कहानी के ज़ेर एहतमाम अखुवत फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब के एजाज़ में अफ्तार अशाइया का इनेकाद किया गया। सादा तकरीब में मुंतज़मीन ने बताया कि सेहत कहानी अवामुन नास को सेहत की मुतअद्दिद सहूलियात फराहम कर रही है। अखुवत के अल्हम्दुलिल्लाह आज 1.5 लाख बेनिफिशरीज के पास सेहत कहानी की ऐप है। अखुवत एक बहुत बड़ा इदारा है जो 4 मिलियन से ज़्यादा फैमिलीज़ को लोन्स फराहम कर रहा है। तो आज का हमारा मकसद ये था अखुवत को एज अ पार्टनर सेलिब्रेट करना, और ख़ुसूसन जो उसके फाउंडर और बानी हैं अमजद साकिब साहब, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है, जो एक फ़ी फ्री कॉलेज चला रहे हैं, जो बिस्क के भी चेयरमैन हैं इस वक्त, उनको ऑनर करने के लिए हमने इफ्तार मुनक्किद की है। सेहत कहानी की एक मोबाइल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, हेल्पलाइन है, और हम देही इलाकों में टेली मेडिसिन बेस्ड इदारे बनाते हैं। तो अखुवत के जितने लोग जो लोन लेते हैं, लोन के साथ साथ वो सेहत कहानी की हेल्थ केयर सर्विसेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारा तजुर्बा रहा है अखुवत के साथ वो बड़ा अमेजिंग है। उनके लोगों की हेल्थ केयर क्वेरीज़ को हम एड्रेस करते हैं और द रिस्पॉन्स हैज़ बिन फिनोमिनल। अखुवत फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था कि मुल्क मुश्किल हालात से ज़रूर गुजर रहा है, लेकिन अगर हर शहरी अपने हिस्से का काम मेहनत और ईमानदारी से करे तो इन्हें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम इस चैलेंज से सुरखरू होगी। तो बड़े लोग वही होते हैं जो मुसीबतों के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, और बड़ी कौम भी वही होती है। आप देख लीजिए जितनी भी बड़ी बड़ी कौमें हैं उनको मुश्किलात के एक वसी समंदर से गुजर। अब आप देखिए ना कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान की क्या हालत थी, या बहुत से और ममालिक की क्या हालत थी। तो इफ़ दे कैन राइज, व्हाई कांट वी राइज? तो बुनियादी चीज़ है उम्मीद और यकीन। जो कौम उम्मीद से महरूम हो जाए और जिसके पास यकीन ना हो वो तरक्की नहीं कर सकती। ये फ़र्द पे भी लागू है ये असूल, और कौम पे भी लागू है। तकरीब में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के सफारतकारों, ताजिरों, मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की इदारों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में स्ट्रेट अफ्तार की इनकाद ने तेज़ी। वाटर पम्प चुरंगी के मुकाम पर 200 से ज़ायद अफराद को फलाही इदारे की जानिब से अफ्तारी करवाई गई। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज, 400 अवामी अफ्तार का इनेकाद। वाटर पम्प चौरंगी के मकाम पर फहद खान फाउंडेशन की जानिब से दस्तरखान लगाया गया, जिसमें 200 से ज़ायद अफराद ने अफ्तारी से इस्तिफादा किया। जनरल सेक्रेटरी अरशद अली और मुंतज़िम शुएब अहमद खान ने बताया कि गुज़िश्ता 3 साल से हर रमज़ान अल्लाह की रज़ा के लिए अफ्तार का एहतमाम करते हैं। रोज़ अफ्तार का हमारा तरीका उस दरमियान आया जैसे कि हम अपने घरों में दस्तरखान लगा रहे होते हैं और हमारी फैमिलीज बैठी हुई होती हैं। इसी हिसाब से हमने सोचा कि ये दस्तरखान लगाना चाहिए। यहाँ पे हर मसलक का, हर मज़हब का, हर फ़िक्रे से ताल्लुक़ रखने वाला इस दस्तरखान पे मौजूद होता है। हमें प्यार मोहब्बत का जो है ना एक सिलसिला चलाना है कि ये दस्तरखान उन लोगों के लिए कि भाई सब मिलके इस दस्तरखान पे बैठ के खा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा पर्पस ये है कि जो रोज़ के लोग कमाने वाले हैं, जिनके पास दिहाड़ियाँ नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, एटलीस्ट उस घर का, उस फैमिली का एक बंदा हमारे दस्तरखान से रोज़ाना खाना खा के उठे। कम से कम एक घर के अफराद का पेट हम भर के यहाँ से भेजें। जो हमारे तौर पे हमसे हो सक रहा है वो हम कर रहे हैं। अमल का दारोमदार नियतों पर होता है, और अगर नियत ठीक हो तो नेकी के जज्बे को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता, जिसकी मिसाल इस फलाई इदारे की अफ्तार में नजर आती है। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। रमज़ान के आखिरी अशरे के साथ ही मार्केटों की रौनकें बढ़ने लगीं। मनपसंद कपड़ों की तलाश में शहर भर की मार्केट में खरीदारों का रश रहा। राहिल बेग की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और आखिरी अशरे में ईद की तैयारियों में तेजी आ जाती है। करीमाबाद मार्केट में भी रात गए थे खरीदारों का खूब रश रहा। खरीदार को कम कीमत चीजों की तलाश और दुकानदार महंगे दामों बेचने को बेकरार नजर आए। पिछले साल जो हमने सूट सेल करा था वो हमने सूट सेल करा था 25 का। इस बार सेल करें समझ ले 3000 रुपए का सेल हो रहा है डिस्काउंट के साथ, वरना 35 का हमने लिख के लगाया हुआ इस वक्त। खरीदारों का शिकवा करते कहना है महंगाई ने कुव्वत खरीद कम कर दी, मगर अपनी इस्तात के मुताबिक ईद अच्छी गुजारने की कोशिश है। कैमरामैन शरियार अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। और रमज़ान मेहरबान में आज का उन्वान यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम। संगत नौजवानान बुतराब ने नोहा पढ़कर सुनाया। अल्लामा अब्बास मेहदी तुराबी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाली। सिटी 21 के खुसूसी ट्रांसमिशन। रमजान मेहरबान का आगाज कारी मोहम्मद अहमद मालकी की किरात से हुआ। मेजबान जालिद सरहदी ने तर्जुमा पढ़कर सुनाया। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हों
उनको मुर्दा ना कहो, दरअसल वो जिंदा है मगर तुमको उनकी जिंदगी का एहसास नहीं होता। जबकि अल्लामा अब्बास मेहदी तुराबी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने फलसफा शहादत पर रोशनी डाली। अली मदीने की जिस गली से गुजरे तो अहले मदीना अली के कदमों के नीचे आने वाली मिट्टी को उठाकर अपने लिए सुरमा करार दे। जनाबे अली के अंदर इतनी खूबसूरत पाई जाती हैं, इतनी प्यारी मौजूद हैं कि अगर मुझे सुर्ख ऊंट, यानी इस वक्त लग्जरी कोई गाड़ी हो ना और आपको कहे कोई कि ये ले लें और वो खूबी मुझे मिल जाए, तो कहते हैं अगर मुझे सुर्ख ऊंट भी मिल जाए तो मैं सुर्ख ऊंटों को रद्द कर दूं, लेकिन अली की उन खूबियों को लेना पसंद करूंगा। ट्रांसमिशन में माहिर खुत्ताब जाहिर शाह ने जदीद दौर में कैलीग्राफी की अहमियत से मुताल्लिक गुफ्तगू की। हमारे सामने अगर कोई आपकी नुक्ता लेके आए, कोई नुक्ता लगा हुआ हो जी, ठीक है, तो वो नुक्ता देख के हम बता देंगे कि किसने लगाया है, अच्छा, किस बंदे ने लगाया है, वाह, और ये किस लेवल का आदमी है ये। जबकि रमजान मेहरबान में आज के नन्हे मेहमानों ने अपना पहला रोजा प्रोग्राम मेजबान जाले सरहदी के साथ अफ्तार किया। भाई बहुत ही कोई खूबसूरत और प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं आज, और सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। तैयारी तो बहुत आप सब में से कोई एक मुझे बताए कि कौन मुझे नाच सुनाएगा। रमजान मेहरबान के किचन में शेफ सरवत सईद ने मजे का व्हाइट चिकन कढ़ाई, सॉफ्ट कॉर्न चाट और कीमे के समोसे बनाना सिखाए। ये मैंने आज मैं सिर्फ अपनी सास के हाथ का खाया है, लेकिन वो डिफरेंट चाट बनाती है, बहुत ही लजीज थी ये चाट है। उसके अलावा ये चिकन व्हाइट कढ़ाई है। अच्छा जी। आज के मौजू यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से संगन नौजवाना ने बोतराब नोहा पढ़कर सुनाया।